मरीज हमारे पास तब आते हैं जब उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। सडनली सुबह उठे, आंख में ब्लीडिंग हो गई और मरीज तब तुरंत परेशान होकर आता है। ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ? तो पता तब चलता है जब ब्लीडिंग होती है, वो लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद पर्दे में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ने लगती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? मैं 8 साल से हर हफ्ते में एक दिन मरीज देखती हूँ जिसमें मैं उनसे कोई फीस नहीं लेती हूँ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਾਈ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੇਨੂਕਾ ਚਾਵਲਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਈਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर साहब जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ स्वागत है साढ़े से। बहुत बहुत धन्यवाद जी चावला जी, आप आज यहाँ पर आए आई साइट आंख अस्पताल में। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, शुगर जो होती है वो शरीर में 3 जगह अटैक करती है। आँख के पर्दे पे डायबिटिक रेटिनोपैथी करके, आँख की नसों पे, शरीर की नसों पे डायबिटिक न्यूरोपैथी करके, और गुर्दों पे नेफ्रोपैथी करके। तो आँख का पर्दा जांच करनी बहुत ज़रूरी होती है। मरीज़ हमारे पास तब आते हैं जब उनकी आँख की रोशनी चली जाती है। सडनली सुबह उठे, आंख में ब्लीडिंग हो गई और मरीज तब तुरंत परेशान होकर आता है। यानी कि ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? जी बिल्कुल। जितने भी डायबिटिक मरीज़ हैं उनको 6 से 9 महीने में आँख के पर्दे की जांच करवानी चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? शुगर एक दीमक है जी, वो शरीर को खा जाती है। पता तब चलता है जब इंसान की रोशनी चली जाती है। तो यानी कि सिम्टम्स नहीं आते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता है। यानी कि सिम्टम नहीं भी आ रहे, अगर शुगर का कोई पेशेंट है उन्होंने 6 या 9 मंथ विच उन्होंने रेगुलरली बिल्कुल रेगुलर चेकअप आँख के पर्दे का, आँख की पुतली फैला के करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। यानी कि ओनली चेकअप कराने के नाल ही कुछ सावधानी अखां दी मतलब उनका बचाव हो सकता है। यदि आँख के पर्दे में सबसे पहले आँख के पर्दे में ब्लीडिंग के छोटे छोटे दाग आते हैं, खून के दाग, उसके बाद वो खून के दाग बड़े होते हैं और पर्दे में हर तरफ, चारों तरफ पर्दे में फैल जाते हैं। बाद में नई नसों का जाल बन जाता है और पूरे पर्दे में ब्लीडिंग हो जाती है। तो पता तब चलता है जब ब्लीडिंग होती है, वो लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद पर्दे में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो यदि हमें सही समय पे पता चल जाए तो हम आँख के पर्दे में जो सूजन आ रही है, नई नसों का जाल बन रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम लेज़र विधि द्वारा आँख के पर्दे में इंजेक्शन लगाकर उसको रोक सकते हैं। और जितनी रोशनी पे हमारे पास मरीज़ आया है, इतने पे रोशनी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं और रोशनी कुछ बढ़ने का भी समाधान रहता है। परंतु यदि पूरे तरीके से रोशनी चली जाती है, तब मरीज़ की रोशनी वापस लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं ये टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि मैं देखा कि शुगर डायबिटीज के पेशेंट
ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 10-15 ਲੋਕ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਾਂ 60-70% ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ कुछ? देखिए, ये एक मिथ है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि पसीना आता था, पंखा नहीं होता था, लाइट चली जाती थी तो हरी पट्टी लगती थी। आजकल लेज़र विधि द्वारा ऑपरेशन होता है। हमारे अस्पताल में, आईसाइट आँख अस्पताल में केवल ड्रॉप डाल के बिना इंजेक्शन लगाए, बिना सुन्न किए डॉक्टर साहब इंजेक्शन हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन करके हम लोग आधे घंटे में छुट्टी कर देते हैं, मरीज़ की पट्टी खोल कर छुट्टी कर देते हैं। पंखा, एसी, कूलर सबके घर में है। गर्मी और सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस वेले हुण जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैगियां ने, हर घर दे विच सहूलतां ने, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई नुकसानदेह नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आज भी हर रोज़ हमारे यहाँ, मैंने अपनी माता जी का ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने खुद किया है, मेरी माता जी का भी, और अपनी गर्मियां 'ਚ कीता है? अभी 3 दिन पहले हुआ है मेरी माता जी का। तो यदि ऐसा होता तो हम अपने परिवार वालों का ऑपरेशन क्यों करते हैं, है ना। अच्छा डॉक्टर मैम जी, एक चीज़ होर, नवा इत्थे हॉस्पिटल ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ रुद्रपुर ਦੇ ਵਿੱਚ? सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी कि मैं 8 साल से हर हफ्ते में एक दिन मरीज़ देखती हूँ जिसमें मैं उनसे कोई फीस नहीं लेती हूँ। अच्छा, पर वीक वो किस दिन केड़ा? हर बुधवार को जितने मरीज़ होते हैं उनका पर्चे की कोई फीस नहीं है। यदि मेरे पास, ये पिछले 8 साल तो चल रहे हैं? जी बिल्कुल 8 साल। इस तरह का मानसिक किमें है? ये एक सेवा है जो हम उन मरीज़ों को देना चाहते हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो एक डेली वेजेस का आदमी है, पूरा दिन 200 रुपये कमा के अपने घर में खाना खाएगा कि डॉक्टर को फ़ीस देगा। तो मेरा मानना ये है कि हम एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें हम उन लोगों के लिए कुछ कर सकें। वाहिगुरु ने जब मेहर दी है कि हमारे हाथ में ये शफ़ा है कि हम आँख का इलाज कर सकते हैं, रोशनी बचा सकते हैं, तो हम हफ्ते में एक दिन हमने ऐसा रखा है, मैंने और डॉक्टर साहब ने, मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित मिश्रा ने। हम बिल्कुल मुफ्त मरीज़ देखते हैं, कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, आँख की ड्रॉप देते हैं, चश्मे की ज़रूरत है, नाल दे नाल दवाई भी फ्री देंदे हो? बिल्कुल, यदि हमारे पास है। बिल्कुल जी, ये बड़े एक जरूरी एक चीज़ तुसी सुन रहे हो कि हर हफ्ते अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तुसी परेशान ना हो, आईसाइट हॉस्पिटल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਾਈਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਏ OPD ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 300 ਪਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 400, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं चाहती हूँ कि हम आँख की फैसिलिटी हर मरीज़ तक पहुँचा पाए, इर्रिस्पेक्टिव, यानी कि उसका कोई भी, यदि वो अमीर है, गरीब है, किसी भी स्टेटस का, यानी कि हर किसी का एक कहिए कि एक समान तौर पे अधिकार भई उन्होंने बढ़िया इलाज। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जो भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं मिनिमम रेट्स पे हम लोग उन्हें उन तक पहुँचा पाएँ, ये हमारा मानना है। इसीलिए हमने अपनी फ़ीस इतनी मिनिमम रखी हुई है कि हम हर इंसान को वो फैसिलिटी दे सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये सन साडे नाल जुड़े अज खास डॉक्टर रेणुका चावला मिश्रा जी। जिस तरह का इन्हां दा नेचर है, जिहड़ा पेशेंट इत्थे आउंदा है, मैं खास तौर पर मैं थोड़ी देर पहला मैनूं 1.5 घंटा लग्या इत्थे वेट करनी भी, क्योंकि पेशेंट की बहुत भीड़ सी। ते जदों मैं कुछ पेशेंट ने गल कीती है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ धन्यवाद जी। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। साथ में करके ना